Okay, so hello and welcome all again to this session. This session is a result of our previous around 10-12 sessions which we have taken on the MCQ series, 100 MCQs series and other important videos. The FMGE exam has been conducted on 20th of January 2024 and here we have the recall questions for anatomy from various of our students. And let us see how many of recall questions are have been done correct, how many of the questions came from MCQ series or our discussions. Let's see. Welcome all, I am Dr. Ankit Khandelwal, Professor of Anatomy and Faculty of Anatomy at LNext. Let's start the video without wasting any further time. So, to begin with, let me tell you in the beginning that I am very happy with the question paper, very happy with particularly the anatomy paper and others as well, that good questions came. Paper was moderate as the whole this mood of the students was. So all the best for your results and all the best for the future, that is the future students as well. Let's start over here. So I will be posting some of the screenshots as well. So just go with it and you will realize what we are doing. So this is a screenshot from a video which we conducted, and that video was on the top 10 high yield topics. So there were two videos. In one video we only discussed the high yield topics, and another video we discussed those high yield topics in a bit of detail as well, right? So as you can see that the top 10 topics we discussed, and see from where the questions have come. Let us quickly revisit them. Vertebral levels, there was a question, you will see in the discussion. There was a question on the arterial palpation, there was a question on the joints as well. The CT abdomen was, I guess, asked in a question. Nerve injuries particularly, it's a very important topic, but luckily or unluckily the question didn't come, but yeah, be prepared, that will be there in the future. Dermatomes, another important topic. Then we have images, embryo, I guess there were a couple of images, we will see in the question. Urethral rupture or perineum was another topic. Larynx pharynx question have come in the ENT over here, and carpal tarsals, a question of the joint came from the carpals, right? So you can see that around 50-60% or 5 or 6, at least 6 or 7 questions were from these topics. So let's move further on, and here is the first question. So first question from the FMG recall was our, what is the vertebral level for the red colored plane in the image. So there was an image given and there was a red colored plane over here, and they ask you what is the vertebral level. So you can see this location over here, this is probably the umbilicus, ये हमारा umbilicus हो गया, right? Umbilicus lies around L3, L4, याद रखना. And this red colored horizontal plane is probably our subcostal plane, which is roughly around the vertebrae, that is the L2, or can say L3 over here, right? Because the L2 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, L3 would be a better one over here. Therefore, answer for this particular question over here would be L3. अब देख लो. Now have a look at the discussion that we did from MCQ series. So we had a discussion on the MCQ series. Let me just highlight it and have a look over here. Here we have discussed the subcostal plane and vertebrae L3. Okay, so these are all approximate numbers. So याद रखिए, in our MCQ exam we have to go with the L3. Okay, L3 for the subcostal plane. So ये देखिए question आ गया आपका. Vertebral levels, very important topic. Go with L3. There were other planes as well. So this screenshot, let me just tell you, this screenshot is from video on the high yield topics in detail. Okay, so yaad rakhna, you can go and visit that video again for a quick revision. Let's come to the second question. Second question था हमारा lateral boundary of Hasselbeck's triangle. Now, I told you while discussion also कि inguinal canal, inguinal hernia high yield topic है. It is a very high yield topic. Question आएगा. Anatomy में आए, surgery में आए, जहाँ से भी आए. Okay, so here is a question from the anatomy part of the inguinal canal anatomy. Lateral boundary of Hasselbeck's triangle. Hasselbeck's triangle is a triangle from where the direct inguinal hernia that arises. Now these are the screenshots for our again MCQ series that we did. And luckily here we have over here, let me just show you, this is the Hasselbeck's triangle shown, and here you can see this over here is the inferior epigastric artery lying on the lateral border, and this muscle over here was the rectus abdominis on the medial aspect. We also discussed that in a cadaveric image as well. The Hasselbeck's triangle over here, this was the Hasselbeck's triangle, and you can see the IEA is the inferior epigastric artery. So inferior epigastric artery, inferior epigastric vessel, which is a branch of the external iliac artery, was the answer over here. That was the lateral boundary. देखिए high yield topics में से आएगा, कोई topics will be repeated, question repeat हो ना हो. This is a common saying which we keep on repeating कि बड़ा topics तैयार कर लो, question वहीं से अटकेंगे, वहीं से फंसेंगे, वहीं से selection होगा, selection वहीं से होगा, नहीं तो selection थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay, चलिए अगला देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन अगेन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. कितनी बार बोलें इसको, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. ये आपका हाई टॉपिक है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स.
आप कोई सा भी साल ले लीजिए, अगर जैन में नहीं तो जुलाई में, जुलाई में नहीं तो जैन में, कभी कभी दोनों बार सवाल आते हैं इसमें से, बीट FMG, बीट नीट PG, इवन इन INICT. So anatomical lesson box, identify the muscle forming the arrow marked boundary. तो समझ जाओ arrow marked boundary यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं. This area over here, this is the anatomical lesson box. Arrow marked boundary is this tendon. ये medial है कि lateral है? So you can realize कि on the little finger side ये side medial है, thumb की side lateral होता है. This is forming the medial boundary. कौन सी boundary? Medial boundary. कौन सा tendon है? The tendon over here is extensor pollicis longus over here. Hence अब देखो आंसर ढूंढ लो, इसमें से कोई ना कोई पक्का ऑप्शन होगा, EPL extensor pollicis longus. And this you can feel in your own thumb. आप thumb को जब extend करोगे, you can feel the tendon that is going towards the distal phalanx of thumb. वही हमारा extensor pollicis longus है. And here you get screenshot. Now this screenshot is from our videos on the LNX platform. वहाँ से you can check it out, right? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा that we have discussed this. तो we discussed it multiple number of times. Anatomical lesson box है बहुत important topic. आता ही आता है सवाल, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, याद रखिए. तो देखिए अभी तक फ्रॉम ऑल द हाई टॉपिक्स, वर्टिब्रल लेवल्स हो गया, आपका इंग्वाइनल कैनाल हो गया और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हो गया. चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर. नाउ एज पर द रिकॉल मोस्ट स्टूडेंट्स सेड कि सर ये जो एरो था ये लेटरल पार्ट ऑफ द रिस्ट पे, लेटरल पार्ट ऑफ रिस्ट पे यहाँ पे टेंडन है उस पे था. कौन सा टेंडन है ये? नाउ रिमेंबर 3 टेंडन्स आराम से आपको फील हो जाएंगे. लेटरल पार्ट यू हैव द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, यहीं पे मीडियल पार्ट में फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, और जो प्रोमिनेंट टेंडन आ रहा है ना ये दिस वन, दैट इज योर पामेरिस लॉन्गस. कौन सा है ये? पामेरिस लॉन्गस. ये याद रखो, है ना. इवन इफ यू डू द ऑपोजिशन मूवमेंट, है ना, पिंचिंग मूवमेंट करो तो यहाँ पे टेंडन निकल के आता है, दैट इज द पामेरिस लॉन्गस टेंडन. लेटरल साइड में यू हैव द FCR, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, मिडिल में फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस. Both of these are important flexors of the wrist. Let me tell you over here, I will also this release some short videos, है ना, YouTube shorts में, and you can have a watch, you can look at them. और काफ़ी सारे movements उसमें अभी शुरू कर दिए, and by the time in a few days there will be more upcoming videos on the important actions, muscles involved and their nerve supply. छोटे videos हैं for few seconds, so ये short उस तरह से नहीं है that they will give you dopamine, but they obviously they are important and for your knowledge, है ना. तो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली. तो अब देखो यहाँ पर सर ठीक है क्वेश्चन पर यहाँ देखिए ये रहा हमारा MCQ सीरीज का डिस्कशन. एंड आई आस्क यू इफ यू हैव टाइम, यू गो टू द MCQ सीरीज, वहाँ पे जहाँ एक क्वेश्चन में डिस्कशन आपको मिलेगा. देयर बाई चांस लक्की चांस है, मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में कि यार ये क्वेश्चन लग रहा आएगा, चांस है इसके आने का. देखो व्हाट वी हैव डिस्कस फ्यू डेज एंड आई वाज फीलिंग ओवरजॉयड. बहुत मतलब खुशी का इंतहा नहीं कि चलो जिन बच्चों ने सुना होगा ध्यान से, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा, उनका क्वेश्चन सही हो गया होगा. हियर वी वर डिस्कसिंग सम टॉपिक ऑन द मीडियन नर्व, फिर रेडियल आर्टरी, एंड आई टोल्ड यू कि रेडियल आर्टरी इज जस्ट लेटरल टू दिस टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस. ये टेंडन आई दिस यू कैन सी दिस अ स्क्रीनशॉट वी हैव हाइलाइटेड ओवर हियर, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी. क्योंकि फ्यू ईयर्स बैक एक क्वेश्चन आ चुका है ऑन द अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी, है ना. इस बार आई जस्ट सेड कि यार फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लग रहा है आ जाएगा. एंड हियर वी आल्सो शेयर्ड अ निमोनिक विद यू. ALT इज आर्टरीज लेटरल टू टेंडन, आर्टरी यहाँ पे देखो रेडियल आर्टरी, एंड लेटरल टू टेंडन में आपका यहाँ पे लिखा है FCR, है ना. सो कुछ भी कह लो, बट या क्वेश्चन केम एंड हियर द आंसर इज ऑब्वियसली फॉर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस. फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस वाज द आंसर ओवर हियर. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों इंपॉर्टेंट है यार? देखो सुसाइडल केसेस आप कैजुअलिटी में आप जॉब करोगे, देन यू विल बी सीइंग सम सुसाइडल केसेस इन द कैजुअलिटी ऑफ अ गुड रनिंग हॉस्पिटल. हाँ, सुसाइड स्लैशिंग ऑफ द कटिंग ऑफ द रिस्ट आता है, तो पता होना चाहिए कि यार ये मतलब इज द टेंडन कट और इज द रेडियल आर्टरी कट, और कोई वेसल कटी या फिर सिर्फ टेंडन ही कटे हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स the person who is committing the suicide, their blade doesn't reach the artery. हाँ, superficial cut ही ज़्यादातर होता है. पर चलो फिर याद रखना these are important clinically. चलिए अगला सवाल देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, which muscle is attached to the arrow marked area of the bone. अब देखो यहाँ पे बोन दी गई थी जैसे बच्चों ने बताया, और एरो था यहाँ पे. एरो किस जगह था? ये कौन सा पार्ट होगा बोन का बेटा? ये पार्ट होगा हमारा, दिस प्रॉब्ली द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, है ना. दिस वाज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, यहाँ था लेसर ट्रोकेंटर. तो दे आस्क कि यार लेसर ट्रोकेंटर पे कौन सी मसल अटैच है, कौन सा स्ट्रक्चर अटैच्ड है. आप कहोगे सर ऐसे तो पूरी एनाटॉमी पागल ही हो जाएंगे, वी विल गो क्रेजी. हाँ, तो लर्निंग ऑल द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स बेटा, नॉट ऑल आर आस्क्ड, वेरी फ्यू आर आस्क्ड. हार्डली अगर मैं आपसे बोलूँ ना कितने पूछे जाते हैं, 5% भी नहीं होंगे टोटल. 5% अटैचमेंट्स ही हैं इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मसल्स एंड अटैचमेंट्स. एक रफ आइडिया दे रहा हूँ बस, ऐसा नहीं है 5 पे ही रखे रहना, प्लस और माइनस 2-3% होगा, बट अराउंड 5% ही इंपॉर्टेंट है बस.
तो लेसर ट्रोकेंटर इंपॉर्टेंट है, कौन सी मसल अटैच है, द फ्लेक्सर ऑफ द हिप, व्हाट इज दैट मसल, दैट मसल इज इलियोश्वास। तो यहाँ पर है, हाँ जी श्वास मेजर है, इलियोश्वास मैंने बोला बिकॉज श्वास मेजर और इलियकस भी चल जाएगा। अब लुक एट द स्क्रीनशॉट, वी वर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन, नॉट द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बट वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे क्वेश्चन देखा, यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर हम क्वेश्चन डिस्कस किया था, एंड देन वी सेड ग्लूटियस मीडियस मिनिमस वहाँ पे अटैच होता है। बट जस्ट टू कंप्लीट द डिस्कशन वी सेड कि हाँ ये जो ऑप्शन है तुम्हारा इलियोश्वास, दैट गोज टू द लेसर ट्रोकेंटर एज वेल। तो इट गिव्स अस अ प्रूफ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, किसी भी वीडियोस देख रहे हो, कोई एमसीक्यू डिस्कशन देख रहे हो, डोंट ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर। इट विल बी अ वेरी शैलो थिंकिंग, बहुत ही मतलब सुपरफिशियल बात हो जाएगी, ऊपरी शैलो ना, ऊपरी सतह की बात हो जाएगी। डोंट ओनली गो विद द क्वेश्चन एंड आंसर। देखो यार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द आंसर, ठीक है, देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, बिकॉज अ गुड एमसीक्यू इज व्हेन द एमसीक्यू इज एबल टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, when the options are there to confuse, MCQ नहीं but the options are there to confuse the student। अगर ऑप्शन ही ऐसे वो, जैसे मान लो क्वेश्चन है, इसमें देखिए भी ऑप्शंस लाइक श्वास मेजर, फिर 2 मसल अपर लिम्ब की दी, 1 मसल हेड नेक की दी, तो सेंस नहीं बनता, राइट। मजा तब है जब सारी मसल्स लोअर लिम्ब की हों और आसपास के एरिया की हों। तो फिर सोचो कि यार नेक्स्ट ईयर इफ द एग्जामिनर इज ऑल्सो ह्यूमन, वो भी तो ऑप्शन देख रहा होगा, वो कहेगा यार चलो इस साल उन्होंने ये पूछा, अगले साल में BCD में से कुछ क्वेश्चन बना लेता हूँ, लाइक दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शंस पर ध्यान देना। ये हमें ज्ञान मिला था, हमारे एक सीनियर थे, ही सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन नीट PG, बहुत साल पुरानी बात हो गई। ही सेड कि यार 300 क्वेश्चन नीट PG के आते थे, अब 200 कर दिए। 300 क्वेश्चन मतलब तुम्हारे पास बेटा 1200 क्वेश्चन है, 1200 टॉपिक्स हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, चारों इंपॉर्टेंट है। तो एक पेपर लगाना मतलब ये नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट यू आर डूइंग 300 क्वेश्चन, वन पेपर इज इक्वल टू 300 × 4, दैट इज 1200। तो ये जरा अपनी बात याद रखना, कुछ सीनियर्स की बात होती है काम की, सो रिमेंबर दैट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई द शोन कंजेनिटल एनोमली इन विच इंटेस्टाइन लूप्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कवर्ड। तो यहाँ पे अगर ये पूरा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वी ऑल नो कि कवरिंग अगर है तो ओम्फेलोसील है, कवरिंग अगर है तो ओम्फेलोसील है, कवरिंग अगर नहीं है, द कवरिंग इज एब्सेंट, इट इज गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस व्हेन देयर इज नो कवरिंग ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं है। And luckily, the gastroschisis has a G prognosis, good prognosis. Omphalocele has a poor or a bad prognosis because omphalocele is associated with other congenital effects, है ना। तो अगर इस तरह से इमेज थी, as students told us, ठीक है, बस here's a discussion, here's a screenshot just to tell you कि we discuss all them in our video sections also, जो हमने LNX में कुछ recorded videos हैं, we discuss there also, and you will have a, if you want then you can have a look at that too, है ना। तो याद रखना, तो questions are simple। क्वेश्चन किस टॉपिक में से आया, इमेजेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, और भी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ें। आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू, पता नहीं इसमें क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे हैं इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है। इन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी डिस्कस्ड कि देखो बेटा CT थॉरेक्स, CT एब्डोमेन के क्वेश्चन कर लेना, एंड आई डिडंट डिस्कस देम इन डिटेल। एक बाई चांस से आई विल शो यू द क्वेश्चन, वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑन CT एब्डोमेन because that is a topic taken up by the radio guys, ना, रेडियो की आपकी फैकल्टी है, टीचर हैं, तो दे टेक अप दिस टॉपिक। सो मैंने डिस्कस उतना नहीं किया था, बट CT एब्डोमेन लकली आई डिस्कस एंड क्वेश्चन आ गया था। बट यहाँ पे देखिए हाउ टू, बिकॉज रेडियो इज ऑल डिपेंडेंट ऑन एनाटॉमी, रेडियो नॉलेज इज ऑल डिपेंडेंट ऑन एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी अगर ठीक है तो रेडियोलॉजी ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या था, आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट्स हैज टोल्ड कि सर एरो जो था वो ये ना ऐसी कुछ इमेज थी, और ये हार्ट के ना यहाँ पर कहीं पे एरो था। तो देखो यार, देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। यू कैन सी कि यार ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, दिस इज अ वर्टिब्री, ठीक है। अगर ये हमारा हार्ट है, देन दीज आर द ट्यूब्स। ट्यूब्स क्या होंगी यार, पीछे है तो एओर्टा होगा, उसके आगे ईसोफेगस हो सकता है, भाई 2 ही ट्यूब है, एओर्टा है, ईसोफेगस है। हालांकि दिस मे बी फॉर्मलिन माउंटेड और प्लास्टिनेटेड स्पेसिमेन है, नहीं तो ईसोफेगस इज एक्चुअली कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर, कोलैप्स हो जाता है। बट चलिए, नाउ द हार्ट चैम्बर विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, कौन सा चैम्बर है यार वो, दैट इज अवर लेफ्ट एट्रियम। सर ये कैसे याद करें बेटा, कैसे याद करना है, MS का केस हो, माइट्रल स्टेनोसिस है ना, माइट्रल स्टेनोसिस केस आप पढ़ते हो रोमैटिक फीवर में, मेडिसिन में, माइट्रल स्टेनोसिस देयर इज लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन, पेशेंट माइट प्रेजेंट एज डिस्फेजिया क्योंकि इट कंप्रेसेस ऑन द ईसोफेगस लाइंग जस्ट बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम। और एनाटॉमी ले लो बेटा, लेफ्ट एट्रियम के पीछे क्या होता है, वी हैव अ ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस, इसके पीछे क्या है, ऑब्लिक साइनस है ना, ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस, उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री ही ईसोफेगस है, राइट। सो एनाटॉमी इज रिलेटेड, सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम ऑब्वियसली, है ना। आगे आप आओगे तो आगे राइट वेंट्रिकल होगा, एक तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, एक साइड में राइट एट्रियम होगा। एनाटॉमी आप हार्ट की पढ़ लोगे। अगेन लेट मी टेल यू, वी हैव 3-4 वीडियोस ओनली ऑन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड देयर स्पेसिफिक ऑल अदर चैम्बर्स इन डिटेल।
अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इसकी मैंने हार्ट की मेडिसिन सारी पढ़ ली है बट मेरे को इसकी एनाटॉमी डाउट है, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि यार वो वीडियोस देख लो एक बार। नीचे आप जाओगे मिल जाएंगे, इसी चैनल में मिल जाएंगे आपको नीचे वीडियोस, यू विल फाइंड वीडियोस ऑन दी हार्ट टॉपिक एनाटॉमी, 3-4 वीडियोस हैं ऑन वेरियस अदर चैम्बर्स, एक बार नजर जरूर मार लो, प्लीज हैव अ लुक एट देम। सो हियर at the most posterior part of the heart, that is the left atrium, it also you must be knowing it forms the base of the heart, है ना। अब ये सीटी इमेज भी आ सकती है, देन ऑल्सो भी रिमेंबर ये उल्टी इमेज यहाँ पोस्टीरियर इधर है, एंटीरियर यहाँ पर है, यू कैन हैव अ लुक कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, और ये सीटी है, देयरफॉर दिस इज द राइट साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर एलवी हो गया, इधर आरए हो गया, सामने की तरफ यू हैव द मोर एंटीरियरली लाइंग राइट वेंट्रिकल। चलिए साहब 7th क्वेश्चन, चलिए 8th क्वेश्चन देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारा लंबर पंक्चर, इसकी एनाटॉमी आ गई इन्होंने, इस बार उन्होंने पूछ लिया एक तरह से लंबर पंक्चर, तो एक मैंने ऐसे टॉपिक बताया, बट दे आस्क अबाउट द एपिड्यूरल, है ना, एपिड्यूरल देने के लिए ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ऑल द स्ट्रक्चर्स आर पियर्स्ड एक्सेप्ट। अब ऑप्शन देखे, अरे इंटरस्पाइनस, सुप्रास्पाइनस, लिगामेंटम फ्लेवम, सबएक्नोइड स्पेस, हो क्या करूँ, जिसको आंसर पता है, हु हैज़ द नॉलेज, कोई बात नहीं, उसके लिए तो क्वेश्चन इज अ केक वॉक, बट फॉर दोज हु हैव पार्शियल नॉलेज, भाई देखो यू कांट हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स, सब टॉपिक की नॉलेज हो नहीं सकती है, किसी भी हालत में लिखवा के रख लो, नहीं हो सकती, दैट इज इम्पॉसिबल, कॉमन सेंस लगाओ। उन्होंने कहा कि यार हमें एपिड्यूरल जाना, अब आपको इतना तो पता होगा कि यार 3 मेनिंजियल लेयर्स हमारी, ड्यूरा मैटर, उसके नीचे आती है, उसके अंदर यू हैव डीप टू इट इज एरेक्नॉइड एंड डीप टू इट यू हैव द पाया मैटर। नाउ व्हिच स्पेस आर दे टॉकिंग ऑफ, दे आर सेइंग कि एपिड्यूरल हमें यहाँ पे आना है, एपिड्यूरल स्पेस में आना है, ठीक, राइट। सो ऑब्वियसली सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ से आ जाएगी, सब एरेक्नॉइड स्पेस इज डीप टू एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड यहाँ पर है कहीं, तो अगर नीडल आपकी ऑब्वियसली पीछे से आनी है, यहाँ से नीडल आनी है, तो इफ इट हैज टू गो टू द एपिड्यूरल स्पेस, तो सब एरेक्नॉइड में आने का मतलब ही नहीं, देयर इज नो चांस अबाउट इट, खत्म करो इसको, सिंपल ऐसे ही करो, खत्म। अब और ऑप्शंस पे आ जाओ, इंट्रास्पाइनस, सुप्रास्पाइनस क्या है, दे आर द लिगामेंट्स बिटवीन द स्पाइन्स ऑफ द वर्टिब्री, जो वर्टिब्रल स्पाइन्स हैं उनके बीच में ये लिगामेंट्स। अभी देखते हैं लिगामेंटम फ्लेवम कहाँ होता है, कौन बताएगा, सोचो कौन बताएगा। और आई वुड अर्ज कि यार जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, क्या एग्जाम नहीं दिया, दे दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो नीचे है ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, देखो अपने आप को टेस्ट करो, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, टेस्ट करो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो, कुछ नहीं आ रहा, देखो कितना, ठीक। उसके पीछे अगर चाहते हो तो अपना वो भी लिख दो, रीजन बिहाइंड दिस। अब देखिए लिगामेंटम फ्लेवम कहाँ है, लिखो भी कमेंट बॉक्स में, अगर लिख सकते हो, इफ यू कैन राइट देन डू राइट। इट इज अ लिगामेंट व्हिच इज कनेक्टिंग विद स्ट्रक्चर्स, इट इज अ लिगामेंट व्हिच इज कनेक्टिंग द लेमाइना, जो वर्टिब्री की लेमाइना होती है उनके बीच में होता है लिगामेंटम फ्लेवम, दैट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन आवर मोबिलिटी ऑफ द स्पाइन। अब देखते हैं कि इसकी इमेज, अब इमेज देखो, ये आ जाओ इमेज पे, और इमेज क्लियर हो जाएगा। सो हेयर इज अ पोस्टर एस्पेक्ट, ये हो गया हमारा एंटी एस्पेक्ट। कैसे पहचाना सर, क्योंकि बेटा आगे वर्टिब्रल की बॉडी होती है, पीछे वर्टिब्री की स्पाइन होती है, ये होती है वर्टिब्री की स्पाइन, ये याद रखो, ऐसे पहचाना। नाउ हियर इज अ नीडल व्हिच दे आर शोइंग अस। अब सारी लेयर्स यहाँ पे समझ लो क्या क्या है, स्किन है, सबक्यूटेनियस है, मसल्स हैं, दीज आर द लिगामेंट्स, सुप्रास्पाइनस, इंटरस्पाइनस एंड लिगामेंटम फ्लेवम। देखो लिगामेंटम फ्लेवम का है, लेट मी हाईलाइट इट द डिफरेंट कलर, ये रहा हमारा लिगामेंटम फ्लेवम, है ना, ये रहा पूरा लिगामेंटम फ्लेवम जा रहा है ऐसे हमारा, है ना। अब इसके जस्ट अंदर यहाँ देखो लेयर्स देखना शुरू करो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब सोचो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर क्लियर हो गया, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ फ्यूज्ड, बिकॉज वर्टिब्री में बेटा क्या होता है, देयर इज नॉट अ वेरी बिग सबड्यूरल स्पेस, देयर इज एपिड्यूरल स्पेस which has the veins, which has the fat and the lymph vessels as well, but there is a very small और potential space कर सकते हो subdural ना के बराबर, epidural space है जो कि यहाँ पे ये दी हुई है, because it has a vertebral venous plexus है यहाँ पे। तो epidural space कहाँ कहाँ है देखो, it is between ligamentum flavum and dura mater, तो नीडल को यहीं तक जाना है, नीडल को जाना यहीं तक है, जब यहाँ तक जाना है तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में नीडल क्यों जाएगी, वो तो तब जाएगी, it will enter सब एरेक्नॉइड space only if it has to take the cerebrospinal fluid, लंबर पंक्चर जो करते हैं इसके लिए, फ्रॉम द लंबर सिस्टम, उसके लिए। बट इन द क्वेश्चन दे आस्क्ड अबाउट द एपिड्यूरल प्रोसीजर, तो उसमें आपका सबएक्नॉइड स्पेस बन गया आंसर, बात खत्म, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरो मार्क्ड जॉइंट, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉइंट इन द मार्क्ड एरो, ये होना चाहिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉइंट इन द मार्क्ड एरो, ऐसा कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो पहले तो ये पहचानो, आई डोंट थिंक बहुत मुश्किल होगी पहचानने में कि कौन सा जॉइंट पूछ रहे हैं। सो here the trick is, this is the lateral bone, ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो ये हो गया हमारा thumb, this is the thumb over here, है ना, and these are the carpals, so if you go from the mnemonic of the carpals also, she looks
टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो आपकी ये कार्पल कौन सी निकल के आती है, दिस इज ट्रेपीजियम, ये बन गई हमारी ट्रेपीजियम, है ना, ये थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये बन गई हमारी ट्रेपीजियम। एंड दिस जॉइंट ओवर हियर इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, है ना। क्यों सर कार्पो मेटाकार्पल, क्योंकि बेटा ये तो मेटाकार्पल है, ओके, एंड दिस दी कार्पल, ये कार्पल है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दिस द जॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट विच इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। मैंने स्क्रीनशॉट दिया है कहाँ से, पुराना वीडियो है मेरा जॉइंट्स पे, देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अलग अलग वीडियोस हैं। सो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट मेक्स द थंब मच मोर मोबाइल देन द अदर 4 फिंगर्स, स्पेशल जॉइंट है, एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। मल्टी एक्सियल की मेनली 2 वैराइटीज हैं, बॉल सॉकेट एंड दी सैडल वैरायटी, दूसरा होता है सैडल वैरायटी। यहाँ पर जो वैरायटी फिट होगी दैट इज दी सैडल वैरायटी, हमारा आंसर हो गया सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इंपॉर्टेंट जॉइंट है, यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पता रहता है, फर्स्ट सीएमसी हो गया, सैडल वैरायटी हो गया, पता है ये चीजें पूछी जाती हैं, राइट। जॉइंट्स इज अ टॉपिक, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जनरल एनाटॉमी फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम। जॉइंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th पे, आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे कुछ एरोज थे, इस तरह की इमेज आई थी आपके एग्जाम में, कुछ एरोज थे, देखते हैं पहले यहाँ पे। तो जो द फीडबैक ची रिसीव्ड वाज, एक एरो यहाँ बना हुआ था, नंबर 1 यहाँ लिखा है, एक एरो ऐसे यहाँ आ रहा था, नंबर 2 यहाँ लिखा था, एक एरो यहाँ आ रहा था, जैसे कि नंबर 3 यहाँ पे लिखा था। वी कैन सी द सीटी स्कैन बिकॉज द बोन्स आर वाइट। तो यहाँ पर हो गई हमारी कौन साइड, साइड डिटर्मिनेशन वेरी क्लियर होना चाहिए, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब देखो यार, 1 ऑर्गन, इतना बड़ा ऑर्गन क्या कोई हो सकता है लिवर के अलावा, मुझे बताओ। 1 लिवर ही लिवर होगा, तो ऑटोमेटिकली अगर सब भूल जाओ, सारी बातें इधर उधर भूल जाओ, तो 1 लिवर में आंसर अपना बचा ही खाली ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन सी। 1 लिवर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता ना, इतना बड़ा ऑर्गन राइट साइड में, और क्या होगा। लुक ओवर हियर, नंबर 3 हमारे लेफ्ट साइड में पीछे आ रहा है, दैट इज अवर स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन हो गया। और नंबर 2 ओवर हियर विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ द एओर्टा एंड आईवीसी, दिस द पेनक्रियास। तो भाई लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन इस तरह से होना चाहिए। आई एम श्योर कि यार ऑप्शंस ना थोड़े से कंफ्यूजन और होंगे, इतने एकदम 1 लिवर में खाली सी ऑप्शन नहीं होगा, एग्जाम में शायद होंगे कि 1 लिवर में कुछ सी, ए, बी या डी में से भी होगा। चलिए खैर, बट हेयर लकीली कह दो, बाय ग्रेस ऑफ द गॉड कह दो, लकीली कह दो, हमने डिस्कस किया था ये सेम क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था, फ्रॉम द टॉपिक एंड द डिस्कशन समझो। वी डिस्कस ओवर हियर, देखिए यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, लिवर, स्प्लीन और बीच में पेनक्रियास कहीं ना कहीं आए होगा, ये सब डिस्कशन हो चुका था। तो ऑब्वियसली अगर आपने एमसीक्यू सीरीज सही से की होगी, आई एम श्योर कि क्वेश्चन आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, निकलेंगे ही निकलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वन मोर क्वेश्चन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज फेल्ट अगेंस्ट C6 ट्यूबरकल एट व्हाट लोकेशन। अच्छा, C6 ट्यूबरकल इज ऑल्सो नोन एज शेजाइनेक्स ट्यूबरकल, ऐसा कुछ इसका नाम है ना। C6 पे होता है साइड में। C6 रिमेंबर, अगर आपको वर्टिब्रल लेवल से भी याद हो, ये क्वेश्चन आप समझो, अगर इस तरह से पूछा गया है, C6 वर्टिब्रल लेवल किसका है, कौन से स्ट्रक्चर का है, क्रीकॉइड कार्टिलेज। वी डिस्कस दैट इन विच वीडियो, टॉप 10 टॉपिक्स। C6 लेवल क्रीकॉइड कार्टिलेज का है। हेयर व्हाट हैपेंस, द लैरिंग्स और फेरिंग्स का अंत होता है, ट्रैकिया इसोफेगस का शुरुआत होती है। द लैरिंग्स फेरिंग्स एंड ओवर हियर, द ट्रैकिया इसोफेगस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एट C6। वहीं पे ट्यूबरकल होता है बिकॉज इट इज मोर प्रोजेक्टिंग ट्रांसवर्सली, तो वहां पर यू कैन फील दी और यू कैन फील द पल्सेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उन्होंने उस तरह से पूछा और यहाँ पूछ ही जब सब कुछ लिया है तो बचा ही कुछ नहीं। लेंजल प्रोमिनेंस, देखो लेंजल प्रोमिनेंस इज मोर ऑफ एडम्स एप्पल, तो ये आगे हो गया। सुप्रास्टल नॉच, तो देखिए सुप्रास्टल नॉच इज योर क्या बोले, वर्टिब्रल लेवल है T2 T3 के बीच में, तो T2 लेवल आ जाएगा वहाँ पर। अगेन एक तरह का क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द वर्टिब्रल लेवल्स। एंगल ऑफ मैंडल तो बेटा बहुत ऊपर हो गया। हेयर ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको मैंडेबल के नीचे फेशियल आर्टरी मिल गई, यू विल ओनली गेट द फेशियल आर्टरी। आज ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज, यहाँ बन गया आपका आंसर। अब सर नीचे क्या स्क्रीनशॉट है वो देख लो, इसको भी देख लो, आराम से देख लो। वी डिस्कस इन हाई टॉपिक्स की यार सुपरफिशियल ना पल्सेटिंग या पेल्पेबल आर्टरीज होती हैं, वो पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट बताई थी मैंने, 9 आर्टरीज एक तरफ में, और वन ऑफ देम वाज दिस कैरोटिड आर्टरी। हाउ टू पेल्पेट क्या लेवल पर होती पेल्पेट, तो दिस इज ऑल योर एरिया फॉर लैरिंग्स ऑफ ओवर हियर, है ना। देख लो आगे क्वेश्चन, बल्ले बल्ले हो गई, राइट। अगर उसको सही से पढ़ा हो, रिवाइज किया हो, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहती हैं और सॉल्व होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ एम्ब्रियो प्लस एनाटॉमी प्लस ENT कह सकते हो। द एरो मार्क्ड स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम, ऑब्वियसली इतना तो हमें क्लियर हो जाएगा, ओटोस्कोप से देख रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ईयर ऑसिकल्स वी आर सीइंग, एंड मेलियस के बाद दिस इज द इनकस, प्रॉब्ली हियर यू कैन सी दिस इज द मेलियस बोन ओवर हियर,
और यहाँ पे आती है आपकी इनकस। Now malleus and incus, these are two of the three ear ossicles. Now they are coming from which pharyngeal arch? They come from the FIRST, first pharyngeal arch. जो स्टेपीज होता है, द स्टेपीज ओवर हेयर दैट अराइजेस फ्रॉम द सेकंड फेरिंजियल आर्च। याद रखो, फेरिंजियल आर्च मैंने कितनी बार बोला था यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। ये जस्ट अ स्क्रीनशॉट जस्ट टू शो यू, बिकॉज कुछ लोग डाउट में थे सर कितने क्वेश्चन आए हैं, हमें लग रहा कम आए ज़्यादा है, वट एवर। जस्ट टू शो यू कि यार ये सब डिस्कस कर रखा था, टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। नो वन कैन से कि मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो क्वेश्चन पूरा वो एग्जामिनर वही सोच रहा है, वही पेपर सेट होकर भी आ जाएगा। दैट इज अटर नॉनसेंस। ऐसा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली यू आल्सो नो। लेट्स बी रियल, राइट? सो बट टॉपिक्स आए, एंड यू कैन सी ओवर है टॉपिक्स ऑफ फेरिंजियल आर्चेस वी हैव डिस्कस इन डिटेल। इससे एक सवाल और आया भी, देखिएगा आप आगे। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन न्यूरो एनाटॉमी, क्वेश्चन आ गया था, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बट इट इज अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। Question says that the patient understands everything, सब समझ लेता है, but and is able to identify object, but he is unable to tell the name or not able to create words. Non-fluent aphasia, समझ में सब आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है। समझ में सब आता है लेकिन जताएंगे नहीं, आता सब है लेकिन बताएंगे नहीं, right? So in a neuroanatomy or neuromedicine, neurology, it is a sort of aphasia, बीमारी है ये, sort of aphasia where the person is able to understand everything but not able to speak, non-fluent है, right? And that is known as which aphasia? That is known as the motor aphasia. उसको बोलते हैं बेटा motor aphasia, है ना? कहाँ पर होता है? ये होता है बेटा also Broca's aphasia, right? So अब Broca's area में होगा, ये रहा Broca's area ना। एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया है, but that is from our videos on LN, जो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वहाँ पे सारे सब डिटेल में डिस्कस है वहाँ पर, पूरा नहीं होगा मैं, तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट टू। Broca's area याद रखिए, इट इज अ मोटर एफेजिया एंड ब्रॉडमैन नंबर इसका है 44-45, रिमेंबर दैट टू। एंड लोकेशन है इसकी इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, सब नोट कर लो। ब्रोकाज अगर पूछा है आज तो याद रखिए, कल क्या पूछेंगे? कल आपसे पूछेंगे वर्निकीज, परसों पूछेंगे एंगुलर, एमिगडालास में क्वेश्चन आ सकता है अगर इफ दीज आर द अदर ऑप्शंस। सो याद रखिए न्यूरो एनाटॉमी ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्ब्रियो का आ गया। डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस फ्रॉम फॉर्म्स विच कंपोनेंट ऑफ डायफ्राम। देखो डायफ्राम के, मुझे याद है बेबी व्हेन 5-6 years back we used to take classes, then at that time the embryology of diaphragm was a very important topic. क्यों? Because diaphragm में what used to happen is it derived from 4 different components. तो यहाँ पर we used to say in our medical language, medical line कि यार कोई भी टॉपिक के अगर 4 ऑप्शन है तो समझो पक्का एक क्वेश्चन है, इट इज अ रेडीमेड क्वेश्चन। वाई? बिकॉज एग्जामिनर कैन इजिली गिव 3 ऑप्शन, हटा देगा या उसमें से कुछ ही पूछ सकता है। सो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अगेन क्वेश्चन स्टार्टेड टू कम फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। देखो डेवलपमेंट डायफ्राम, व्हाट आर द 4 थिंग्स ओवर हियर? 4 थिंग्स आर सेप्टम ट्रांसवर्सम, पूरा तो नहीं पढ़ा रहा बट कुछ बता रहा हूँ। डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस, then you have pleuroperitoneal membrane and you have the cervical somites. These are the 4 things which form the diaphragm. अभी कह रहे हैं कि डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस डायफ्राम कौन सा पार्ट बना रही है? देखिए यहाँ पर here you can see an image which is showing us anterior posterior। देख लो, पहचान बड़ी आसान होती है एंटी पोस्टीरियर की। एंटीरियर यहाँ पर आगे, पोस्टीरियर जहाँ पर we have the vertebrae। यहाँ पर these are the area for the pleuroperitoneal membrane, right? And this whole area is of septum transversum. This is the area where you have the esophagus. तो इसके obviously इसके जो surrounding structures होंगे that is formed by the mesentery of esophagus, right? और साइड में, बाहर की साइड में you have these as the cervical somites, और कैन से contribution of body wall हो गया cervical somites। तो पता है यार esophagus के आसपास जो एरिया है वो होगा। अब ऑप्शन देखिए, सेप्टम डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस फॉर्म्स व्हिच कंपोनेंट, इन्होंने ऑप्शन क्या दिए? सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये तो यार खुद ही एक पार्ट है, इट इज फॉर्मिंग द एंटीरियर पार्ट। क्रस, व्हाट इज क्रस ऑफ? क्रस इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली इन द डायफ्राम। जो याद है, इफ यू गो टू द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू हैव अ राइट क्रस, वी हैव अ लेफ्ट क्रस। दो तरह क्रस होते हैं। द राइट क्रस इज अप टू L3, लेफ्ट क्रस होता है L2 तक, एंड दे आर प्रेजेंट मोर पोस्टीरियरली। अब यहाँ पे ध्यान दो यार, पोस्टीरियर पीछे वर्टिब्री के पास कौन सा आ रहा है पार्ट? दैट इज द ईसोफेगस। तो ऑब्वियसली द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ईसोफेगस इज, वो अपने आप कह रही है कि आई एम अटैच्ड डॉर्सली, पीछे जा रही हूँ। डॉर्सल मींस मोर पोस्टीरियर। तो क्रस कहाँ है? क्रस इज मोर पोस्टीरियर। तो कॉमन सेंस लगानी है कई बार, रटना नहीं बैठ के। आंसर इज योर क्रस। बाकी देखो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन और ये सब चीज़ें अलग हो गई। आंसर बनेगा हमारा क्रस ऑफ डायफ्राम। चलिए एक और देखिए, एक अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्वाइनल कैनाल एनाटॉमी। कोर क्वेश्चन है एनाटॉमी का ये। मोस्टली क्वेश्चन तो आजकल दे आर नो दिस क्लिनिकल क्वेश्चन और एमलगमेशन ऑफ 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट मिला के पूछते हैं। कोर क्वेश्चन देख लो। फॉर द कंजॉइंट टेंडन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। भाई गलत क्या है?
कंजॉइंट टेंडन क्या होता है? कंजॉइंट टेंडन इज IO प्लस TA फॉर्मूला याद रखो. व्हाट इज IO प्लस TA सर? IO बेटा है इंफीरियर ऑब्लिक और TA है तुम्हारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, है ना, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल. कंजॉइंट टेंडन बनता है, एक सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है दैट नॉट ओनली फॉर्म्स द रूफ ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये बल्कि एंटीरियर वॉल का पार्ट भी बनेगा और ये पोस्टीरियर वॉल का पार्ट भी बनेगा. किसका? फॉर द इंग्वाइनल कैनाल. ये चीज़ है, नीचे छोड़ दो, फ्लोर छोड़ दो, छत भी बनाएगा, मेनली रूफ, एंटीरियर वॉल भी बनाएगा, पोस्टीरियर वॉल भी बनाएगा ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल एनाटॉमी. ये होता है कंजॉइंट टेंडन. अब देखो ऑप्शंस क्या है, चलो पहले वो समझ लेते हैं, यहाँ तो कुछ बेसिक बात हो गई. फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑब्लिक कैनाल, बिल्कुल सही बात है. प्रोटेक्ट्स द सुपरफिशियल टू मेंटेन इंटीग्रिटी, बिल्कुल, बिकॉज ये पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है, सो इट गोज बिहाइंड द SIR. फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल, तो बात हुई कि तभी तो इट इज प्रोटेक्टिंग. रन्स पे नहीं बेटा, पैरेलल नहीं. तो होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, एज आई विल शो इन द इमेज, कि आंसर तो डी है, डी गलत है. इट डज नॉट रन पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट. लेट अस सी इन दिस इमेज. ये इमेज अगेन हमने डिस्कशन किया था इन अवर MCQ सीरीज. इंग्वाइनल कैनाल का क्वेश्चन था. तो मैं जूम करूँ थोड़ा सा इसको, और इफ आई जस्ट ट्राई टू जूम इट, हियर यू कैन सी दिस टू मसल्स. व्हाट आर दीज टू मसल्स? इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. ओके, आई होप इट इज स्लाइटली विजिबल नाउ, है ना. एंड दीज टू मसल्स ओवर हियर, ये दो मसल्स क्या करेंगी? दे आर इन दिस लोकेशन, दे आर A फॉर एंटीरियर. अब फ्री कैनाल के ऊपर से जा रही है, यहाँ पर ये बनाएंगी R से रूफ, और ये मिलकर टेंडन बन गया. अब ये बन गई P से पोस्टीरियर वॉल. लुक केयरफुली, ये डीप रिंग के आगे भी हैं और सुपरफिशियल रिंग के पीछे भी. सो दे आर प्रोटेक्टिंग द डीप रिंग, सुपरफिशियल रिंग, एंड दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग द रूफ. इस तरह का ये कैनॉटमी होती है. अब इंग्वाइनल लिगामेंट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर, नीचे है. इट इज यू कैन से इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर आ गया. इट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिन्यूरोसिस, उसके पैरेलल रन नहीं करता है. ओके, सो ये हमें डिफरेंस जानना है यहाँ पर. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी वुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर ओवर हियर. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी. द फॉलोइंग एनोमली, देखते ही पहचान लो यार इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है. दिस इज एनेनकेफेली, एंड वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कि यार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एवरग्रीन टॉपिक्स, वन ऑफ द एवरग्रीन टॉपिक्स. और कैसे होते हैं, कब होते हैं, दैट वी ऑल डिस्कस. बस याद रखिए, देयर इज अ न्यूरल ट्यूब. इसका एक और होता है, एक एंटीरियर और क्रेनियल, तो वी कॉल इट एज एंटीरियर न्यूरोपोर, एंड देन देयर इज अ पोस्टीरियर न्यूरोपोर एज वेल. ठीक है, तो दो पोर्स होते हैं यहाँ पर. इफ द एंटीरियर न्यूरोपोर डजंट क्लोज, देन दिस डिफेक्ट कम्स, जो हमारा एनेनकेफेली है. इफ द पोस्टीरियर न्यूरोपोर डजंट क्लोज, वी हैव द what we have the spina bifida वाले केसेस आते हैं. अब कुछ और एनाटॉमी पहले बता दूं, फिर विल शो यू द डिस्कशन. द न्यूरुलेशन इज एट वीक 3. द एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजेस ऑन डे 25, एग्जैक्ट बता रहा हूं फ्रॉम लिगामेंट्स, एंड द पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोजेस ऑन डे 28. याद रख लो. सो एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजेस ऑन डे 25, पोस्टीरियर क्लोज ऑन डे 28. अगर ये डे 25 पे क्लोज नहीं हुआ, देन देयर आर चांसेस फॉर द एम्ब्रियो ओवर हियर टू डेवलप एनेनकेफेली. देख लो यार अपने ऑप्शंस क्या क्या हैं, बस बन गया, पहला ऑप्शन ही बन गया. एंड हियर वी हैव द स्क्रीनशॉट्स जस्ट टू शो यू. दिस इज ऑल डिस्कशन ऑफ एनेनकेफेली एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन डिटेल. यहाँ पे देख लीजिए, एनेनकेफेली डिस्कशन में है, डेज 25 इफ यू कैन सी, डे 28 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. चलिए, द एरो मार्क कंजेनिटल एनोमली डेवलप्स ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ. अब ये कौन सी एनोमली? इट इज ऑब्वियसली ऑरिकल, दिस प्री ऑरिकल साइनस. तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे ऑरिकल को लेकर है. अब ऑरिकल किससे डेवलप होता है? ऑरिकल हैज 6 ऑरिकुलर हाइलक्स, एंड दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम वेयर? दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल आर्च. ये आते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड फेरिंजियल आर्च से. अब देख लो यार, यहाँ पर देख लो, और हम फेरिंजियल आर्च फिर से आ गया टॉपिक, अगेन इट केम. इतना इंपॉर्टेंट, क्या कर सकते हैं. हेयर यू हैव द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च. यहाँ पे हमारा क्या बना? दिस दी फर्स्ट फेरिंजियल आर्च एंड दिस दी सेकंड फेरिंजियल आर्च. इनके बीच में देख लो, यहाँ पर ऑल डेवलपमेंट ऑफ ईयर. यहाँ पर यू हैव द मिडल ईयर, यू हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. देयरफॉर इसीलिए क्या होता है बेटा कि ये पूरा जो है ना बाहर, ये बन रहा है हमारा ऑरिकुलर, और ऑरिकल बन रहा है. दिस ऑरिकल डेवलपिंग फ्रॉम हेयर. इट इज कमिंग बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फेरिंजियल आर्च दोनों. यहाँ पर देख लो, दिस इज अ टेबल. आई अर्ज यू गाइज टू टेक अ स्क्रीनशॉट. ले लो इसका यार, काम आ सकता है. एंड हेयर यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच केम. यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन. कोई सा क्वेश्चन आ सकता है. इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ ईयर का डेवलपमेंट है, बेसिक एम्ब्रियोलॉजी याद रखना है. राइट, सो हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 17.
देखो 17-18 क्वेश्चन आ गए, बहुत है। विच पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज अटैच टू द मैटरनल साइड, अगेन कोर एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन है यार ये। प्लासेंटा ऑलवेज याद रखो दो चीजें हैं, फ्रॉम द फीटल एस्पेक्ट जो कोरियन आएगा, एंड फ्रॉम द मदर एस्पेक्ट मैटरनल साइड जहां पर की डेसिडुआ आएगा मैटरनल। व्हाट इज डेसिडुआ? डेसिडुआ नथिंग बट अ प्रेग्नेंट यूट्रस। तो मदर की साइड से यू हैव अ डेसिडुआ, कौन सा डेसिडुआ? डेसिडुआ बेसिलस। फीटल की साइड से यू हैव अ कोरियोनिक फ्रंडोसम, पूरा लिख देते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम, फ्रंडोसम, राइट। एक इक्वेशन याद रखना बेटा, ये दैट कोरियोनिक फ्रंडोसम प्लस डेसिडुआ बेसिलस इज इक्वल टू प्लासेंटा, ये मिलके बनता है हमारा प्लासेंटा, राइट। अब डेसी तो आंसर देख, आंसर तो यहाँ बेसिलस हो गया, बाकी चीजें क्या, व्हाट आर अदर थिंग्स? सी कैप्सुलरिस इज द अदर पार्ट ऑफ, मतलब जहां पर कोरियन घुस रहा है दैट इज नोन एज बेसिलस। जो अदर पार्ट जो विच इज इन टच विद एम्ब्रियो इज नोन एज कैप्सुलरिस, कैप्सूल तरह बनाता है। एंड द रिमेनिंग अदर होल यूट्रस इज पैराइटलिस, ठीक है। यहाँ पर यू कैन हैव दिस इमेज ओवर हियर showing us the decidua basalis from the mother side, और यहाँ से you can see this villi coming out. These are all chorionic villi, tertiary chorionic villi. These are all chorionic villi coming towards the decidua basalis. So याद रखिए placenta is chorionic frondosum plus decidua basalis, इतना फंडा याद रखो, right? So these are all the questions. I hope you liked. Recall, देखो यार, I congratulate all of you and I congratulate myself as well, and it's a blessing. We should feel good, happy. The series which we did, the whole, you know, the efforts which we all place, not just me, because आपने भी देखा सुना समझा, एग्जाम आप ही को देना, as a fruit is coming to some, it's fruitifying, है ना। उसमें questions we are getting those questions. High topics याद रखिए. So it's a good lesson कि हमें questions देखने, उनके options देखने हैं. We have to look for the important topics and keep on doing that. That's all from my side. I hope you enjoyed the session. Baki, also keep on looking at the shorts as well. I would like to give you information in less than a minute, because the shorts are less than a minute only. Core academic informative information. Also do check all the previous videos. A couple of videos, couple of hints let me give you. जो must watch है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में आगे। swallowing का एक वीडियो I have just published. Do have a look at that. Swallowing या deglutition, एक बार देख लेना. All the process has been described onto it. And others, you just scroll through it, you will get few videos, right? So if you liked it, forget to press the like button, share करो दोस्तों के साथ, and don't forget to subscribe if you haven't yet subscribed for other interesting videos. That's all from my side. All the best for your exams and results. Bye. Take care.